be decided later on. My dear students, welcome to the class of Masters of Business Administration. Today we are going to host a healthy debate based on your choices and logics that whom do you want to see as Chief Minister of Uttar Pradesh and why? I hope that you all will be articulating your idea openly. We have very intellectual students of Madan Mohan Malviya University of Technology as worthy panelists, and we have a highly seasoned participants. So here comes a selected group of managers. They will be articulating their opinion based on their logic that to whom they wish to witness as the next CM in the year 2022. So over to all the worthy managers. We have among the debatants who will be discussing their idea, Mr. Uday Pratap, Mr. Manohar Prasad, Mr. Aditya Raj Jaiswal, Mr. Siddharth Kumar Gupta, Mr. Arpit Pandey, Mr. Himanshu Dubey, and Mr. Avinash Rahul Amit, Mr. Amit Verma, Mr. Ashwini Kumar Maurya, and a few panelists will be joining in between. So let us start the debate and let me reiterate the topic. Whom do you wish to witness your next CM and why? It's over to the debaters. We have Ms. Nisha Chauhan. So start your opinion. Sir, in my opinion, Yogi Adityanath must be the proper CM candidate for the upcoming elections. Sir, the CM candidate must think about the youth and about the employment and providing the basic things to the people, that is food, shelter, and clothing. So these all the things must be considered very basic needs, so that this if these things are considered, and whomsoever the candidate must be there, he must consider these all these things uh, for the elections. And sir, these are the basic needs for any person which needs to be fulfilled by the CM candidate. Okay, Ashwini Kumar Maurya, what do you have to tell? We have other panelists. Ashwini Kumar Maurya is not online, and till he connects, we will move to the another speaker. Ms. Nisha Chauhan, what is your opinion? And the stage is all yours.
सर, मेरा ओपिनियन ये है कि योगी आदित्यनाथ को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी वर्क नहीं हुए हैं, योगी आदित्यनाथ ने वो सारे किए हैं। सबसे ज़्यादा सही ये है कि लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो भी क्राइम एरिया था या फिर जो भी लड़कियाँ जाने के लिए बाहर डरती थीं, वो सारा आजकल खत्म हो चुका है। चाहे वो नाइट का टाइम हो या फिर डे हो, वो आराम से बिल्कुल फ्री होकर के बाहर निकलती हैं। ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। और जो हमारा लीगल है या फिर कानून जो है लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है इस पे। जब योगी आए हैं तो हम लोग चाहते हैं कि वही आगे के लिए भी हम उन्हें ही प्रेफ़र करें। थैंक यू सर। Okay. Over to Amit Verma. Good evening, sir. Good evening, dear all friends. Uh, I have some parameter, so I often prefer those candidates who fulfill all this parameter. And in this parameter, recently, we saw that the migration issues during this pandemic, it's one of the big issue with us. And that time, most of the state government, they provide the best facility, including their transportation, meal, and other things. So the first parameter is all belong to migration. Second parameter is belong to farmer, because as we know, India is the country of villages, and over the 65% or 70% people, they survive their bread and butter with the farmer and agriculture. Third parameter, it's belong to industry. Nowadays, we notice that in our state, we have a best infrastructure. We have a 4 lane, we have a best other kind of industry. And last parameter is industry. Nowadays, as we know that industry is the backbone of any country. And if we have a best kind of industry in our country, so it promotes the employment. And the last thing is all about the legal and means it's all about the administration. So we have a best administration in our state. As our friends, I think her name is Nisha, she already told us her opinion. We have a best women helpline and other things. So these all parameters fulfilled by Mr. Yogi Adityanath ji, and in my opinion, he is the suitable candidate for this year as well. And he really did a tremendous job, glorious job, marvelous job, and for current scenario, I think he's the best person. So I prefer to vote as a person to him, and being a citizen of our country, responsible citizen of our country. This is my request to all of you. Just appear in means participate in 2022 vote. Thank you. Yes, we have Avinash Rahul. Good evening, sir. I would like to see Mrs. Priyanka Vadra Gandhi as the CM of Uttar Pradesh, as she is directly represent 50% of population, being as a woman. As we all know, women were unprivileged from decades. She offered more than 50% of her seats to the women in upcoming election. And if as per the statistics which I saw in a newspaper, the number of cases in Uttar Pradesh were increased from last 5 years, and number of unemployment people has been increased from the from last 5 years. And from the second wave of COVID, we can find that disaster management during the COVID second wave was very poor. We saw different very disturbing pictures in Allahabad and Varanasi Ghat. People were buried over the bay of river. That was very disturbing pictures we saw in COVID second case. So I think we should give a chance to the Priyanka Vadra Gandhi as the next CM of Uttar Pradesh. Thank you, sir. Thanks for sharing your opinion. I think that
Mr. Arpit Pandey wants to say something, so it's over to him. Arpit. Sir, I think, sir, Yogi ji is a proper candidate for the CM. And sir, the basic thing he needs to correct is that, sir, employment is very burning issue among the youth, sir. And that's why, sir, as we can see the NTPC case, sir, railway is not ready to answer the thing which the youths are facing, sir. That's why, sir, this is the basic thing which Yogi ji have to work more. Yes, sir. That's it. Okay, we have Avinash Rahul is done. Uday Pratap, did you share your opinion? Uday Pratap. Good evening, sir. Good Yes, sir. evening. Good evening, sir. Sir, I'm also support on Yogi ji, because Yogi ji, sir, जब से आए तब से उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनके मतलब सीएम बनने से पहले के जो उनके प्रोमिसेस थे उन्होंने वो सबसे पहले बेसिकली कंप्लीट किया. इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था. मतलब जो ऑन द डॉक्यूमेंट एंड ऑन द रोड दोनों चीजें सेम है. बट फिर भी सर उनके आने के बाद से बहुत सी अच्छी चीजें हुई, लाइक जैसे कि निशा ने बताया कि वुमेन हेल्पलाइन चली, एंड अर्पित ने बताया कि बेसिक्स नीड्स पूरे हुए, एंड आवर कलीग अमित ने बताया कि लाइक जैसे कोविड आया तो उसमें बहुत से के स्टेट्स में ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने ही लोगों को एक्सेप्ट करने से छोड़ दिया एंड हॉस्पिटल्स में लोगों को एडमिट नहीं किया. बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ. हमारा स्टेट जो है वो और सारे स्टेट से काफी बड़ा है और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है. उसके बाद भी योगी जी ने मतलब बहुत डिसिप्लिन तरीके से एंड बहुत प्रॉपर मैनर तरीके से सब चीज को हैंडल किया. तो अगर ये सब देखे तो एक पॉजिटिव हमें दिखाई देता है कि हाँ योगी जी ने चीजों को संभाला और आगे भी अच्छे से संभाल सकते हैं. एंड जो जॉब्स वगैरह निकले उसमें सब सही तरीके से जॉब्स में रिक्रूटमेंट हुआ बिना किसी केसेस के एंड ऑल. एक आध को छोड़ दें तो, बट 2-4 नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो इसमें मतलब इस कार्यकाल में हुए. लाइक हाथरस का जो केस हुआ वुमेन के साथ, उसमें उनके फैमिली वालों को ही नहीं पता चला कि हाथरस की मतलब जो लड़की थी उसका डेड बॉडी को दाह संस्कार किया जा रहा है. एंड थोड़े छोटे हुए, बट ये अगर स्टेट है तो थोड़ी चीजें होंगी, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो योगी जी बेस्ट रहे अब तक. तो आई विल सपोर्ट योगी. Aditya Raj, do you have to say something? Aditya, please unmute yourself. Yeah, sorry sir. सर मैं भी बीजेपी का ही सपोर्टर हूँ. मैं भी चाहता हूँ कि योगी जी ही आए अपकमिंग इलेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स पे वो बेहतर काम किए हैं. जैसे जब से योगी जी आए हैं तो क्राइम रेट एज पर वी कंपेयर टू द सपा पार्टी, तो क्राइम रेट बहुत कम हो गया है. और फिर मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारे स्कीम्स भी आ चुके हैं, जैसे MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट. और इस तरह से करप्शन का भी मतलब अगर थोड़ा कंपेयर किया जाए तो करप्शन भी कम हुआ है. और राइट्स जितने पहले दंगे होते थे समाजवादी पार्टी के टाइम पे लगभग करीब 20 से 25 दंगे हो चुके थे. उससे अगर कंपेयर किया जाए तो इस समय बीजेपी के टाइम पे दंगा और ये सब मारपीट और जितने भी धर्म और कम्युनिटी के नाम पे होते थे झगड़े, ये सब बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज हो गए हैं. और तो और सर डेवलपमेंट में भी काफी चीजें बढ़ी हैं. जैसे योगी जी जू बनवाए सर, एंड हाईवेज, और पूरा मतलब गोरखपुर को एक तरह से रिवैम्प कर दिए हैं. तो मेरे हिसाब से सर 2022 इलेक्शंस में योगी जी की ही गवर्नमेंट बननी चाहिए. थैंक यू सर. Abhishek Singh, we have. Yes, sir. Yes, we need to. I would like to say Yogi ji is the best candidate, since he's also 5-time MP. Also have done so many development, not only in Gorakhpur but also in whole UP. और उन्हें उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है, नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी. और उनके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है 5-टाइम MP होने का, और कैसे माफिया राज और ये सब को खत्म करना है वो उनको अच्छे से पता है, और आज सारे जेल में भी हैं. आई थिंक ही इज द बेस्ट कैंडिडेट. We have with us Vaibhav Kant Misra. यस सर. सर मैं अविनाश जी जो बोले हैं उनसे सर सहमत नहीं हूँ. सर WHO खुद सर सराहना कर चुका है यूपी सरकार का कोविड मैनेजमेंट को लेकर. और दूसरी बात सर, गोरखपुर के जिले में ही सर इंसेफ्लाइटिस दिमागी बुखार जिसे बोलते हैं उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया है. 2017 से पहले सर हर महीने लगभग 2 से 3 हजार मृत्यु होती थी छोटे बच्चों की,
लेकिन सर जब से मुख्यमंत्री बने हैं आज सर 1 से 2 मौतें होती हैं महीने की, वो भी सर उस पर भी लगातार काम चल रहा है। और सर मैं आज अपना अनुभव साझा करना चाहूंगा। अभी 1 घंटे पहले आशा वर्कर आई थी सर घर, ये लोग हर घर जा रहे हैं और सबसे पर्सनली पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लगा है कि नहीं। तो सर कोविड मैनेजमेंट को लेकर कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि सर यूपी सर अगर देखा जाए तो देश का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है और उसमें भी मैनेज करना ये बहुत बड़ी बात है। और सर जैसा इन्होंने बोला कि लाशें जो दफनाई गई थी गंगा किनारे, तो सर जो गंगा और यमुना नदी के किनारे जो जिले हैं वहाँ पे सर रिचुअल है कि मैक्सिमम लोग जलाते नहीं है, दफना देते हैं। तो वही केस था सर, और कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। Okay, we have Abhishek. यस सर। Sir, allow me, may I add something? Immediately after Abhishek, let him share his opinion. After that, I will call you. Abhishek. अभिषेक बघेल। सर आई थिंक सर जैसे उन्होंने बोला कि प्रियंका गांधी को होना चाहिए सीएम कैंडिडेट क्योंकि वो वुमेन है, तो सर इस बेसिस पे सर किसी को भी हम कैंडिडेट नहीं बना सकते, मतलब या फिर सीएम का कैंडिडेट नहीं चूज कर सकते कि कौन वुमेन है या फिर कौन मेन है। आई थिंक उनके काम के बेसिस पे, उनके वर्क एक्स के बेसिस पे, उनका लोगों के साथ कनेक्शन कैसा है, उसके बेसिस पे होना चाहिए सिलेक्शन। थैंक यू सर। Okay, Avinash wants to add something. Sir, on the basis of work, I represent two statistics figure that the number of cases in Uttar Pradesh has been increased and number of unemployment people are also increased. So how can we justify this thing that the work of the current CM has been praised, were fine as compared to the earlier? And sir, I want to quote another thing, that more than 8 examination paper has been leaked in last 4 years. So how can we say that he is the right person to manage? He is the right person who deal with the future of the youngster. I think he is not good in management. That's the reason that more than 8 examination paper has been leaked from last 4 years. So can anyone justify this? Aditya Raj May I want to Jaiswal say may I? say something. Aditya Raj Jaiswal wants to say something. Let us have Yes, his. sir. सर जैसे कि हमारे काबिल दोस्त अविनाश जी कह रहे हैं कि हम योगी जी के सरकार में 4 से 5 साल के अंतराल में बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। लेकिन सर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उस टाइम पे तो मतलब पेपर होने का सीन ही नहीं होता था। बहुत सारे लोगों को डोनेशन दे के नौकरी दे दी जाती थी सर, वहां तो पेपर होने का सीन ही नहीं होता था। एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट तो ग्रो कर रही थी सर, समाजवादी पार्टी गलत एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट तो ग्रो कर रही थी। लेकिन तो वैसे एम्प्लॉयमेंट का क्या काम सर, जो अब एक बात बताइए, जिनके पास कनेक्शन है, जिनके पास पैसा है सर, वो लोग अधिकारी की पोस्ट पे बन के बैठे हुए हैं। वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं फिर भी वो लोग बन के बैठे हुए हैं सर। तो ये एक तरह से ठीक ही है ना सर। चलिए ठीक है, वो लोग करा रहे हैं, पेपर लीक हो गया तो सर ये जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सरकार में लीक हुआ, ये अखिलेश यादव की सरकार में भी हो सकता था सर। कोई नई बात नहीं है इंडिया में। सर यस वो बहुत बार पहले हो भी चुका है। कैंसिल हो जाते हैं हमेशा। सपा सरकार में सर करप्शन को लेके सबसे ज्यादा सीन होता था। पेपर लीक होने के बाद पेपर लीक होना कैंसिल होने का कोई मतलब ओके सर, तो समझ लीजिए। Everyone is talking about the safety. No one is talking about the employment growth. ओके सर, मैं बता रहा हूँ सर एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सर मेरे चाचा थे, उन्होंने टेट का एग्जाम दिया था, उस साल क्लियर किया था। तो सर ये न्यूज में भी आया था कि यूपी टेट की लिस्ट का जो सिलेक्टेड हुए थे कैंडिडेट, उस लिस्ट को मुलायम सिंह यादव जी ने फाड़ के फेंक दिया था उस टाइम पे। तो सर उस पर्पज से देखा जाए तो सर अब काफी अच्छा चल रहा है एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी। मतलब जो लोग टैलेंटेड हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए सर, ऐसा हो रहा है। हमने देखा था सर मुलायम सिंह की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो पा रहा था। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस सर रेट होता है सर अलग-अलग पोस्ट का, 20 लाख 22 लाख। सर जिसके पास टैलेंट है सर उसको जॉब मिलनी चाहिए। ज्यादा है। यस और सर वन थिंग सर, ये जो केसेस बढ़ने की बात हो रही है क्लास, मतलब ये बोले कि हमें फिजिकली रिपोर्ट दिख रही है कि केसेस स्टैटिक्स में बढ़ रहे हैं। सर जब इससे पहले योगी गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी सर, वो केसेस रजिस्टर्ड ही नहीं होते थे ना।
अभी जब से गवर्नमेंट आई तब Okay, आसानी से Nisha केसेस wants रजिस्टर्ड to हो जा say रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ केसेस बढ़ जा रहे हैं। Hello, Nisha Chauhan wants to say something. Let us have Yes, her. sir. ओके यस सर। सर सर जब हाई स्कूल या इंटर या फिर कोई भी पेपर होते थे तो ऐसे होते थे कि बच्चे पढ़ाई करना तो भूल ही गए थे कि पढ़ाई क्या होती है, क्योंकि उनको ये था कि नकल कर लिया जा रहा है और पास होया जा रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद से कहीं ना कहीं कुछ दे करके सब लोग नौकरी पा जाते थे। उनके अंदर कोई भी एबिलिटी ही नहीं होती थी, वो लोग कैपेबल ही नहीं होते थे उस चीज के लिए, और वो लोग वो काम करते थे फिर उसको प्रॉपर करते ही नहीं थे। और बोला Yes, sir, जाए बिल्कुल सही बोल रही हैं। To tell something, Abhishek. मेरिट पे भर्ती ओके आती थी सर। उनकी सर मैं सबसे यही ज्यादा कहना चाहूंगा सर, सर जब अखिलेश सरकार थी तो सर यहाँ पे एजुकेशन के मामले में भी सर ग्रेजुएशन की डिग्री पैसों में मिल जाती थी सर। तो अब सर यहाँ पे भी करंटली बहुत आकृति जायसवाल, quickly. आकृति. यस यस सर। सर जब पेपर जो लीक होते थे सर, वो तो पहले से सर सूचित हुए आए हैं, बट सर जो अब लीक होते हैं पेपर्स, तो सर वो जो लीक करते हैं वो भी तो पकड़ाते जा रहे हैं सर। केसेस भले बढ़ रहे हैं बट केसेस रजिस्टर हो रहे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं, वरना बढ़ते हैं आगे। Okay, we have Amrita Singh for the first time to speak. Amrita. यस सर। सर पहले की गवर्नमेंट में तो मेरिट पे होता था और मेरिट पे जॉब मिल जाती थी, स्पेशली यूपी पुलिस में देखिए वो उतने एबल भी नहीं होते थे, बट उन्हें बस मेरिट के बेस पे जॉब दे दी जाती थी। बट अब ये नहीं है कि मेरिट बेस पे जॉब दी जाती है। Okay, we have Vaibhav जॉब की Kant Misra. वैकेंसीज। Vaibhav Kant यस सर। सर पहले जवाबदेही नहीं तय की जाती थी कि अगर चीटिंग भी होता था तो आराम से वो खुले में घूमते थे, लेकिन आज सर जवाबदेही तय की जा रही है, क्योंकि रिसेंट इंसिडेंट सर अगर हम देखें यूपी टेट का एग्जाम कैंसिल हुआ तो 24 से 48 घंटे के अंदर जो आरोपी थे उनको पकड़ा गया और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की गई है। और सर We have Anand Pandey. Anand Pandey. जी सर, जी सर। यस सर। सर मतलब जो करप्शन की बात हो रही है, अगर करप्शन की बात करें सर तो प्रीवियस गवर्नमेंट में सर करप्शन इस लेवल का था कि जो यूपीपीएससी एग्जाम होते थे वो भी लीक हो जाते थे सर। सर उस समय सर संजय यादव एक मतलब उस समय यूपीपीएससी के अध्यक्ष थे, और मतलब 80 एसडीएम्स के पोस्ट निकले हुए थे जो यूपीपीएससी के मतलब अंदर आते हैं। उसमें आउट ऑफ 80 60 कैंडिडेट्स आर ऑफ यादव कास्ट एंड देयर मार्क्स आर इंक्रीज ओनली इन इंटरव्यू। those candidates got less mark than other candidates in the written examination, but for the purpose of posting them, their marks are increased only in the interview. Then this was the level of corruption in that government. Kotalwal, you want to tell something? यस सर। सर आनंद ने हमारा बोला कि उस टाइम यादव कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता था। यस सर। लेकिन आज भी वो चीजें हैं। अगर देखा जाए पूरे गोरखपुर के थाना में, ठीक है, केवल सिंह ही हैं जो एसआई हैं, बाकी बस कैंट थाना को छोड़ करके एक यादव है। तो ये भी तो यहाँ पे बेइज्जती हो रहा है। ऐसा नहीं है, मेरे मामा लोग पार्टी में थाने पे पूरे यूपी में सर नहीं, अगर आप बात अगर यहाँ पे हेलो, ये बात पे जा रही है सर, ये जो सही नहीं है अगर देखा जाए तो। और रही बात थाने पे पोस्ट करने की, सर को अलाउ करने दो बात करने के लिए। हेलो Okay. भाई, सर को अलाउ करने दो भाई, सब लोग अपने से मत बोलो, सर अलाउ करेंगे। And I will be calling you one by one. That should be practiced. So I can see the first raised hand is Nisha Chauhan. Nisha. यस सर। Yes. जब अखिलेश का सरकार था सर, तो उस टाइम सबसे ज्यादा कैंडिडेट पुलिस में यादव ही हुए थे, और उस टाइम यादव लोगों का बहुत ही ज्यादा मतलब उन्हें लगता था कि उनके लिए कोई भी कानून है ही नहीं, वही लोग उन्हीं के थ्रू ही सारा कानून बना लिया गया है, तो ऐसा था। और जो समाजवादी पार्टी है, उनके जो हेड हैं हमारे मुलायम सिंह जी, उनका हमेशा जो भी वो बयान देते थे इतना बहुत ज्यादा बेकार होता था। वो लड़कियों को लेकर के कभी भी वो हुए ही नहीं है। वो यहाँ तक के भी इतने बड़ी बात बोल दिए थे कि रेप क्या होती है, रेप बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। इसके लिए उनकी जो बहू थी उसके लिए भी बोली कि अगर आपके घर में ऐसा किया जाए तो क्या ये सही है, तो वो सुटेबल है ही नहीं उत्तर प्रदेश के लिए। ओके, अर्पित पांडे। अर्पित सर मैं यही बोलना चाहूंगा, सपा सरकार में सर यादवों की भर्ती से बहुत ज्यादा होती थी सर। कांस्टेबल भर्ती में सर बिना पेपर के सर सिर्फ मेरिट से और सर यादवों को प्रेफरेंस दिया जाता था सर। और सर गुंडागर्दी भी बहुत होती थी सर सपा सरकार में सर वो चीज तो अब बहुत कम है सर। वैभव कांत मिश्रा। यस
सर एक स्कीम सर योगी गवर्नमेंट लॉन्च की थी सर जब सरकार आई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सर। इससे सर 75 डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग जो प्रोडक्ट है उनको सर प्रमोट करना और उनकी सर बिजनेसेस बढ़ाना। जैसे गोरखपुर की सर स्पेशलिटी है टेराकोटा की, सिद्धार्थनगर की सर स्पेशलिटी है काला नमक। तो सर इनका इंटरनेशनल ब्रांडिंग किया है और सर दिवाली से लेके अब तक सर अब मतलब बहुत ज्यादा रोजगार क्रिएट हुआ उससे, और लगभग 10 से 12 हजार करोड़ का सर बिजनेस हुआ है इस पे। ओके गुड। उदय प्रताप जी। सर किसी फ्रेंड ने हमारे बोला कि एग्जामिनेशन एंड जॉब्स एंड नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हुए, एंड किसी शायद आई थिंक धीरज ने बोला कि थाने पे नंबर ऑफ सिंग्स मतलब ठाकुरों की संख्या बढ़ी है। सर देखा जाए एग्जामिनेशन की बात कर रहे, किसी दोस्त ने बोला था कि 8 एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो गए। सर ये पेपर लीक हुए मतलब गवर्नमेंट के थ्रू नहीं लीक हुए, इसमें जो मीडिएटर थे उनके थ्रू लीक हुए। और जैसे कि वैभव ने बताया कि इनको जवाबदेही देनी पड़ रही है, अब पहले ऐसा नहीं था, पहले गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व रहती थी और साफ साफ जनता को दिखता था कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और नंबर ऑफ जॉब्स की संख्या जो है, जितने भी जॉब्स निकले हैं सर वो पूरी तरह से वैकेंसीज हुई हैं और सही तरीके से लोग गए हैं। अगर जॉब्स निकली हैं और जो लोग उसके काबिल हैं वो लोग उस जगह पे नहीं पहुंच रहे हैं और पैसे दे के लोग पहुंच जा रहे हैं, तो ये भी एक तरह से छुपी हुई बेरोजगारी है कि काबिल लोग को नौकरी ना मिल रही और जो काबिल नहीं उनको नौकरी मिल रही है, और ये सबसे ज्यादा घातक बेरोजगारी है। अविनाश राहुल। नंबर ऑफ केसेस की अविनाश मेरी बात खत्म नहीं हुई सर अभी। ओके कंप्लीट करो। तो नंबर ऑफ केसेस की जहां तक बात है, आप कंप्लीट करिए। यस उदय। नंबर ऑफ केसेस जो इंक्रीज होने की बात है सर कि नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो पहले ही गवर्नमेंट में सर केसेस रजिस्टर्ड ही नहीं होते थे, तो इंक्रीज कहां से होंगे। और थाने पे सर अगर ठाकुरों की बात हो रही है कि ठाकुरों को रख दिया गया है या ब्राह्मणों को रख दिया गया है, तो सर अगर रखा भी गया है तो उससे कोई अहित नहीं हुआ है, अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया कि वो ठाकुरों का सपोर्ट करे या ब्राह्मणों का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हो भी रहा है तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट अगर ये इस गवर्नमेंट में हो रहा है तो गलत है। अविनाश राहुल, इट्स ओवर टू यू। सर आई वुड लाइक टू से समथिंग दैट ये हमारा जो पूरा डिस्कशन है शायद वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। हमारा डिस्कशन लास्ट सीएम में क्या डिमेरिट थी वो गिनवाने पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं देन कंपेयर टू अभी प्रेजेंट सीएम की क्या मेरिट्स है। So I would like our discussion is not on this also. Our discussion is located on that whom do you wish to see Yes, sir. your CM and why. Yes sir. Instead of कि हमारा लास्ट सीएम में क्या गड़बड़ी थी या गलती थी, अगेन आई वांट टू ऐड वन थिंग कि मिसमैनेजमेंट के टर्म में कहना चाह रहा हूँ सर कि देयर वाज वन स्कीम, हाउसिंग स्कीम इन उत्तर प्रदेश। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जिनके घर ऑलरेडी बने हुए थे। जैसे एक पैरामीटर होता है कि अगर किसी के पास 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ज़मीन हुई तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं जिनके पास ऑलरेडी घर बने बनाए हुए थे और इस गवर्नमेंट में उन्हें 2.5 लाख रुपए बांटे गए और वो 2 मंजिले 3 मंजिले घर बनाए। तो मैं फिर से ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये मिसमैनेजमेंट का एक डिमेरिट है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि वो 2.5 लाख रुपए अगर हम किसी को फ्री में दे देते हैं, वहीं पर हम टीवी में देखते हैं कि 2000 रुपए गवर्नमेंट मांगती है ताकि हम छोटे बच्चों के आंखों का ऑपरेशन करा लें। सर एक अगर हम उस 2.5 लाख रुपए को अगर हम सही डायरेक्शन में यूज करते हैं तो शायद Okay, Avinash, now we are going into the last round of comments and many hands are raised. So everyone is supposed to conclude in 30 seconds. And we are moving to Amrita Singh Rajput. Amrita. यस सर। सर जैसा कि निशा ने बोला कि मुलायम का स्टेटमेंट अच्छा नहीं होता था, नेगेटिव होता था वुमेन्स पे, तो मैं इससे एग्री करती हूँ, बट ये नहीं एग्री करती कि योगी बहुत पॉजिटिव बोलते हैं। वो बोलते हैं कि उनका भी स्टेटमेंट था वुमेन्स पे कि अगर उनमें मेन जैसी पावर आ जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव पावर होता है, और मेन में आती है वुमेन की क्वालिटीज तो वो अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता है। और उन्होंने ये भी बोला था कि एक औरत को हमेशा जरूरत पड़ती है आदमी की उसके सेफ्टी के लिए। Okay, Akriti Jaiswal. Sir, as some of my friends said that Priyanka Gandhi be the CM, next CM.
सर बट प्रियंका गांधी सर वो यहाँ पे सीएम तो बन जाएंगी, बट सर वो उसके बाद चली जाएंगी, उन्हें नहीं पता रहता है कि क्या चल रहा है। सर फिर वो 5 साल बाद ही देखेंगी जब उन्हें वोट चाहिए होगा। सर यहाँ परिवारवाद ज्यादा चलता है, इसीलिए सर उन्हीं के पार्टी के अच्छे अच्छे लोगों ने छोड़ दिया है पार्टी, और इवन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सर योगी बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ आवर। Okay, Dheeraj Modanwal. Your comment, please, Dheeraj. Sir, no point. Your hands are raised. So, Anushka Earlier Verma, earlier you clarified it. Dheeraj, you are done. You clarified your point. Anushka Verma. Yes, sir. Thank you so much, sir. Sir, I think it's not about Singhs or Yadavs or any other cards. It's about Ram Rajya and balancing between the lines and freedom of raising the right issues and concerns within the society. So, if we check the graph, I strongly believe Baba Yogi Adityanath ji is the suitable one for us to leave our Uttar Pradesh. Thank you. Okay, beta. Then this was Anushka. We have Abhishek Singh. Quickly, Abhishek. सर जैसा अविनाश ने बताया कि पहले इस तरह का कंपैरिजन करते हैं, तो सर कंपैरिजन हमेशा दो लोगों के बीच में ही होता है। इस वजह से सर पहले गवर्नमेंट और ये लास्ट वाली करंट गवर्नमेंट की बात हो रही थी। और जैसा सर उसने बताया कि घरों के बारे में पैसा दिया जाता है, सर तो अब गवर्नमेंट अब सीएम तो आके देखेंगे नहीं, वो तो सर लोअर डिपार्टमेंट के अथॉरिटी में होता है किसको पैसा चाहिए और किसको नहीं चाहिए। तो आई थिंक सर कि वो सर लोअर मैनेजमेंट का काम है देखना और उसको चेक करना। There must be some checks and balance. Yes, sir. Okay, Abhishek, that Anand. आनंद पांडे। जैसे यस सर, जैसे मतलब सर ये कोरोना मैनेजमेंट की बात हो रही है सर, तो अगर हम कंपेयर करेंगे अदर स्टेट से तो ही बात कर पाएंगे सर। अगर बात करें केरला की, तो केरला जो है हाईएस्ट वहाँ की लिटरेसी है जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, वहाँ पे सर सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ था कोविड का। महाराष्ट्र में भी वही हाल था, दिल्ली का भी वही हाल था। हमारा यूपी जो है उन सब स्टेट से बहुत ज्यादा पुअर है इकोनॉमिक बेस में भी और लिटरेसी रेट में भी। उसके बाद इवन उन सभी स्टेट से कोरोना मैनेजमेंट यूपी का बहुत बेहतर था सर। सिर्फ इंडिविजुअली एक स्टेट की बात करना, अब ये कह देना कि मतलब यहाँ मैनेजमेंट सही नहीं था, ये था, गड़बड़ है सर। जब कहीं ना कहीं ओके, उदय प्रताप फॉर योर फाइनल कमेंट। बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया बोले उदय प्रताप। ये सर जैसे कि मतलब सारी चीजें पहले तो क्लियर हो चुकी हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया लाइक पिछले 5 सालों में। बट अविनाश ने बोला लाइक पैसे गायब हो गए, बट सर पैसे जो गायब हुए पहले तो आते ही नहीं थे लोगों के पास, अब कम से कम लोगों के पास तो आ रहे हैं। योगी जी ने इनिशिएटिव तो लिया वहां तक पहुंचने का। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर जो उन्होंने कहा एंड जो प्रॉब्लम्स उन्हें दिखी, उसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिया एंड कुछ करने की कोशिश की। ये सबसे बड़ी बात होती है अपने सीएम के बीच में कि वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए कुछ करने की कोशिश करता है। वो हो पाए ना हो पाए वो डिपेंडेंसी है, बट ही ट्राइज। तो आई वांट योगी जी इज आवर फ्यूचर सीएम। मयंक प्लीज सर, फाइनल कमेंट। सर हम मेरे क्लासमेट गर्ल्स पे बात कर रहे हैं, वुमेन्स पे बात कर रहे हैं, तो मैं ये बात ऐड करना चाहूंगा कि योगी जी से पहले नेक्स्ट जो भी सीएम, जितने भी सीएम बने, आज तक कोई अपने घर की बहन बेटियों को रात में रोड पे या कहीं और भेजने से डरते थे। जब से योगी जी आए हैं, निडर मेरे घर की किसी के घर की बहन बेटियां कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं। इससे पहले लोग सोचते थे, डरते थे, उनके अंदर खौफ पैदा हो जाता था। Okay, coming to Himanshu Singh. Amrita, yes, you want to add something? We have after Himanshu, you will speak. Himanshu. सर 2017 के पहले यूपी के लोग अगर बाहर जाते थे तो उन्हें एक अलग नजर से देखा जाता था, लाइक गुंडा, क्योंकि हम लोग गुंडा राज के लिए ज्यादा जाने जाते थे 2017 के पहले। सर 2017 के बाद ये सर सिनारियो चेंज हुआ है। पहले सर हर क्षेत्र में एक बाहुबली नेता हुआ करता था, वहां की पुलिस, वहां का सिस्टम उन्हीं को फॉलो करते थे। लेकिन सर अब ऐसा नहीं है सर। अब पहले सर पुलिस स्टेशन में जाते थे तो कंप्लेन दर्ज ही नहीं होती थी, उन्हें भगा दिया जाता था। लेकिन अब सर कमजोर से कमजोर आदमी भी जाके सर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करा सकता है। ओके, आदित्य राज। यस सर। ओके, यस सर।
सर बहुत सारा पॉइंट अभी तक हो गया, मतलब ये बात सही है सर, बात कहीं और से शुरू हुई थी, कहीं और चली गई है। तो पहले तो हम ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे देना चाहते हैं कि कुछ लोग कहे थे कि एग्जाम लीक हुआ था, और सर ये एयरफोर्स का XY ग्रुप का पेपर था जो हम भी दिए थे, वो एग्जाम अटेंड किए थे, और वो पेपर लीक हुआ था, पर उस पर भी तुरंत कार्रवाई की गई थी योगी सरकार में, अभी 6 महीने पहले की बात है। उसके बाद हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सर यादव पुलिस में पहले ज्यादा भर्ती होती थी सर, और अब अकॉर्डिंग टू स्किल्स सर उन लोग को भर्ती दी जाती है सर, मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको मिलता है भर्ती। और सर तीसरा सर, जैसे कि सर ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सर, जैसे कि गांधी फैमिली है इंडिया में, और ये अखिलेश यादव फैमिली है, तो सर ये लोग मतलब एक तरह से सोच के ही चलते हैं कि हम लोग बॉर्न लीडर हैं, हम लोग पैदा ही हुए हैं राज करने के लिए, एक तरह से जैसे राजा का बेटा राजा ही बनेगा, इस तरह का इन लोग का माइंडसेट है। इस वजह से ये लोग एकदम समझते हैं कि हम ही लोग हैं और कोई है नहीं, बट ऐसा है नहीं सर। सेंट्रल लेवल पे मोदी जी देख रहे हो, यहाँ स्टेट लेवल पे सर योगी जी देख रहे हैं, और हमारा भी यही मानना है सर, बीजेपी ही आएगी अगली 15 से 20 साल तक। थैंक यू सर। Okay, thank you. I think nobody has to tell anything. We should conclude the talk now. In last, I want to add something that I got to Yogi. Sir, I want to say one thing. 10 मार्च I want to सबका say one thing. सर आएंगे योगी जी। Sir, I want to say Okay, something. listen, all of you have shared your opinion, and the topic we covered today, that from your syllabus, understanding the main idea and supporting details. So first you come up with your main idea, then you try to support it by you to point it out and back it with the supporting details. Now can you realize that how main ideas can be supported by the supporting details, and these small things that you come up, whether it may be examinations, election and all that, all those were supporting details for the logic that you have built upon. And based on that, thanks for sharing your opinion. Frankly, we had a very nice discussion today. Thank you all for making the discussion fruitful and the debate in the positive direction. Very nice interaction and wonderful talk. Thank you sir. Thank you so much. Credit Thank to you, sir. Thank you. it was a session. Thank you sir. It was a session on by the student for the student. It was wonderful session. Thanks a lot. So I am going to stop the recording and close the. जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। बिल्कुल। योगी